बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें दर्शनों से क्या फ़ायदा होता है? जैसे हम मॉर्निंग में दर्शन करते हैं सेवा से पहले, तो उसका क्या कोई फ़ायदा? फ़ायदा नहीं। अगर आप गिनती कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बेटा ये गिनती नहीं होनी चाहिए। हम सब कुछ गिनती में ले आते हैं। दर्शन की एक अवस्था होती है, आप नहीं दर्शन कर सकते जब तक वो देने वाला ना चाहे ना। तो जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, मन में एकाग्रता होगी, हम सुध बुध भूल के सिर्फ अपने इष्ट को देखेंगे, तब उसके साथ हमें सहारा मिलेगा, मगर गिनती नहीं करनी चाहिए। और बाबा जी, कभी जैसे मन भटक जाता है, जैसे सेवा में या सत्संग आने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करें? कई बार मन में प्रेशर बहुत पड़ जाता है। बेटा सेवा इंसान अपने लिए करता है, सेवा का फल किसी और को तो नहीं मिलेगा। जी। ठीक है ना। सेवा करते हैं कि भजन सिमरन में बैठते हुए मन काबू नहीं आता, सेवा करेंगे वातावरण बनेगा तभी मन काबू में आएगा। तो ये तो आपके ऊपर मुनस्सिर है। तो ये ठीक है कि कई बार जिम्मेवारियां इतनी होती हैं कि वो नहीं होता, मगर ये तो हमारी सोच होनी चाहिए बेटा। जी बाबा जी, राधा स्वामी। बाबा जी आपने सब कुछ दिया है हमें, और नामदान की भजन सिमरन की भी कोशिश करते हैं, उसके बाद भी खालीपन सा महसूस होता है सर जीवन ये में। तो अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे तो मन दुनिया की इच्छाओं के साथ अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है। हमने वो बर्तन खाली करना है, खाली करेंगे तो ऐसा महसूस होगा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको भरना है भजन सिमरन के साथ। ठीक है बाबा जी। मेरा बाबा जी दूसरा क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके अच्छे या बुरे होने की अंतरात्मा से आवाज़ आती है, लेकिन हम अक्सर उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, ऐसा क्यों बाबा जी? बेटा दुनिया के प्रभावों के नीचे फंसे हुए हैं, इच्छा के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि जो भी काम करना चाहिए इच्छा के बगैर करना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए, जो गलत है नहीं करना चाहिए। हम उसका हिसाब किताब लेके बैठ जाते हैं कि इससे मेरे को क्या मिलेगा। हमने तो निष्काम होकर सब कुछ करना है। ठीक है बाबा जी, दया मेहर करना पूरे परिवार। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਵੇਂ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰਾਂਗੇ,
ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? सब कुछ सतगुरु तुसी करना, दया मेरे बनाई रखना, राधा स्वामी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਏ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਆ ਜਾ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹੋਗੇ। ਦਇਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਬੇਟਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮਦਾਨ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਔਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਖਾਵਤ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ, 10-12 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ 9-10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜਿੱਠ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। बाबा जी, शुरू तो लेके अब तक सेवा सत्संग जाने के बाद हम सब भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि मन बहुत हावी है बेटा। अब मन के ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं, जन्मों जन्मों के पीछे प्रभाव हैं बेटा। अब भजन सिमरन इसलिए करना है कि उन प्रभावों से उनको हम हटा सकें, मगर उनके नीचे ही दबे रहेंगे तो बेटा फिर गलत काम तो होगा ही ना। रोज़ भजन सिमरन करेंगे, ऐसा वातावरण बनेगा तो वो प्रभाव हटते जाएंगे, मन हल्का होता जाएगा बेटा, अंदर से और ताकत मिलेगी कि हम इन चीज़ों का सामना कर सकें। बाबा जी, एक रिक्वेस्ट है कि इस नालायक बना देना कि अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ। बेटा ये देखो, माँ बाप बेटा सिर्फ प्रेम और प्यार चाहते हैं, और अगर आप प्रेम और प्यार दोगे बेटा, माँ बाप पैसा पूसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें और प्रेम और प्यार से उनके साथ बर्ताव करें बेटा। अपने चरण चलाई रखी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਹਜੂਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਿਓ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਜੋੜੀਏ ਨਾ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ
ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲ ਐਂ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਐਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਜਮ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬੇਟਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਰਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਸਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਡਰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਨ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। सब कुछ लिए धन्यवाद। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैंने लाइफ में बड़ी गलतियां करी है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं बेटा देखो, आप इस गलत फहमी में मत रहें कि कोई यहाँ खड़ा होकर माफ़ी मांगेगा तो माफ़ी मिल जाएगी और कर्म ख़त्म हो जाएंगे। कर्मों का जो कानून है वो अटल है, जैसी करनी वैसी भरनी। माफ़ी सच्ची वो होती है बेटा जहाँ हमें एहसास हो कि गलती हो गई और हम उसको संवारने की कोशिश करें और सही रास्ता अपनाएं, वो सच्ची माफ़ी है बेटा। अब यहाँ खड़े हो के आप कुछ कहेंगी, मैं वापस जवाब दे दूँगा, मगर इसके साथ कर्म ख़त्म नहीं होंगे। गुरु का मकसद ये नहीं होता कि एक भरम से दूसरे भरम में ले जाए। गुरु का मकसद है कि आपको सच का एहसास दिलाए, और सच यही है, कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर।
और बाबा जी आपकी दया मेहर चाहिए फैमिली पे और संगत पे। आप अपनी तरफ से मेहनत करें, बाकी मालिक के ऊपर छोड़ें। जी कहते हैं भजन सिमरन और सेवा करो जी। तो भजन सिमरन सेवा में जब लगते हैं तो घर परिवार पीछे पड़ जाते हैं जो। नहीं बेटा, मैंने अभी बेनती की ना कि 24 घंटे हैं दिन में। हाँ जी। आप 24 घंटे बहुत हैं कि आप सभी को आप वक़्त दें। ये इंसान है जो एक तरफा हो जाता है, अगर कमाई में लगा है वो परिवार को भूल के बैठ जाता है, रिश्तों में जुड़ा हुआ है उनको देख के सब कुछ भूल के बैठ जाता है। हाँ। अब एक तरफा हो गए तो फिर तो रिएक्शन होगा, फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा पड़ेगा। तो इसलिए बैलेंस रखें कि काम को भी वक़्त दें, परिवार को भी वक़्त दें और भजन सिमरन को भी वक़्त दें। ये तो कहीं नहीं किसी ने कहा कि भाई 24 घंटे आप सिर्फ सेवा ही करते रहो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बेटा दुनिया 'ਚ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੈਂ? ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੈਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भजन में बैठता हूँ तो मुझे आपका रूप याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ बाबा जी। नहीं बेटा, भूलने की बात नहीं है, ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। ध्यान अपने आप आएगा, हम सिर्फ सिमरन कर सकते। तो इसलिए आप सिमरन पे ध्यान रखें, जैसे जैसे एकाग्रता आएगी अपने आप ध्यान आएगा। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं जॉबलेस हूँ अभी, तो मैं मेरे भाइयों की कमाई पे अभी हूँ, तो क्या ये सही है? कोई ना बेटा, जैसे जैसे आगे जाके नौकरी मिलेगी जो भी आपने लिया है वापस कर सकते हैं। शुक्र है मालिक। बाबा जी मेरा पहला सवाल कर्मों के बारे में है कि जो कर्म हमारे जो हम फिज़िकली कर रहे होते हैं, अगर वो हम सिमरन करते हुए करें तो वो कर्म हमारे लेखे में नहीं लिखे जाते क्या? और क्या वो कर्म सेवा है, सेवा का पार्ट है? बेटा कर्म तो सब लिखा जाएगा, चाहे अच्छा है बुरा है वो तो लिखा जाएगा बेटा। चाहे आप सिमरन करो ना करो, ये कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म करने का एक ही ज़रिया है, वो जो शब्द है। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। बाकी तो सेवा करते हैं वातावरण बनाने के लिए बेटा। वातावरण बनेगा तो वो भजन सिमरन करके उस शब्द के साथ जुड़ेंगे बेटा। बाबा जी मेरा दूसरा सवाल है कि बाबा जी मैं भजन सिमरन में आगे बढ़ने से बहुत डरती, डर लगता है, प्लीज़ आप दया करें। क्यों डरते हैं बेटा? आपने सुना है कोई भजन सिमरन करता करता पूरा हो गया? इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती। मगर कोई भजन सिमरन करता मरता नहीं है। तो ये मन का बहकावा है और कुछ नहीं है, आप मत डरें। कॉन्शियसनेस जब ऊपर चढ़ती है तो डर लगता है, अंधेरे से मेहर करें, दया करें। ये तो अच्छी बात है बेटा। मालिक जब हम मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं तो क्यों डरना चाहिए? डरना तो संसार से चाहिए, डरना तो इन लोगों से चाहिए। मालिक से क्यों डरती हैं? आप होते हैं उस वक्त मेरे साथ। आप क्या समझती हैं? होते। तो फिर थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप मुझे यहाँ लाए, आपने इतनी रियलाइजेशन दी बाबा जी, थैंक यू। बेटा थैंक यू लफ्ज़ों के साथ नहीं, करनी के साथ बेटा। अपनी करनी में उसका शुक्र करें, उसने किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देनी। लफ्ज़ों के दायरे में मत लाएं इन चीज़ों को। I can't live without you now. Please.
मुझे टोटल सरेंडर करवा दो, मैं पूर्ण रूप से बस आपकी हो जाऊँ बाबा जी। बेटा वो हर एक चीज़ का एक जरिया होता है ना। हमने जो कुछ भी मालिक से लेना है वो भजन सिमरन के ज़रिए लेना है। तो अगर हम अपने मन को भजन सिमरन में चैनलाइज करेंगे, वो किसी चीज़ की भी कमी नहीं छोड़ेगा बेटा। बना दो। आई एम अ बिग जीरो बाबा जी, बिग जीरो। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। बेटा ज़ीरो नहीं कोई होता। अगर ज़ीरो होते तो उसने इंसान के जामे में जन्म भी नहीं देना था, फिर हमें कोई जानवर या पक्षी बना देता। अगर इंसान का जामा बख्शा है तो इसका मतलब हमारे में वो कैपेसिटी है निभाने की, करने की। हमने सिर्फ उसको रियलाइज़ करना है। सो ऐसे मत समझें, अपनी तरफ से मेहनत करें और बाकी वो बख्शिश करेंगे। बाबा जी हम डेरे में आते हैं, यहाँ बड़े प्यार से सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो माहौल एकदम चेंज हो जाता है। वहाँ न तो इस तरह से सेवा कर पाते हैं और न ऐसी इच्छा होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? वातावरण कौन बनाता है? वातावरण हम ही बनाते हैं बेटा। 4-5 इंसान इकट्ठे हो गए तो वही वातावरण बनाएंगे। तो जैसे यहाँ आकर हम अच्छा बनाते हैं तो बाहर ही क्यों नहीं बना सकते? सो इसलिए बेटा देखो, इंसान की क्या ज़रूरत है? सिर ढकने के लिए छत चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। अब अपनी चाहत को बढ़ा लेगा तो बोझ बढ़ेगा, बोझ हल्का तो नहीं होगा ना। तो अगर हम उस लक्ष्य को सामने रख के अपने आप को मालिक के हुक्म में ढालने की कोशिश करें और अपनी तरफ से मेहनत करें, अगर जो मालिक ने किस्मत में लिखा है वो तो मिलेगा। उसको बहाना तो नहीं चाहिए कोई देने के लिए। जो किस्मत में नहीं लिखा, आप जितना मर्जी कर लो वो नहीं मिलेगा। तो हमने तो उसके हुक्म में रहना है बेटा। दूसरा सवाल बाबा जी, हम कई बार ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जिसकी वजह से सामने वाला या तो दुखी हो जाता है या नाराज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? हर एक की अपनी अपनी पसंद है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। सभी की सोच तो एक जैसी नहीं है। तो आप सही करें। अब जो आप करेंगे कोई अच्छा मानेगा, कोई बुरा मानेगा, मगर आप सही काम करें बेटा। बाबा जी जब मैं बैठता हूँ नींद बहुत परेशान करती है बाबा जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोली पता कौन सी बिकती है? नींद की गोली। ठीक है जी बाबा जी। मालिक ने हमें भजन सिमरन दिया है, हमें गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बीमारियां नींद की कमी से फैलती हैं। तो हमारे ऊपर तो मालिक ने इतनी बख्शिश कर दी, भजन सिमरन करो और लूट गए। बेटा ये भी एक अवस्था है। जी बाबा। पता चलता है दोबारा शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता इस अवस्था से भी आगे बढ़ जाएंगे। जी बाबा। बाबा जी आपको खुश करने के लिए क्या करें बाबा जी? भजन सिमरन। बाबा जी आप दया मेहर करेंगे तो जरूर होगा बाबा जी। मेरे करने से कुछ नहीं। वो सारा कुछ मैं थोड़ी करना है, तुझे भी कुछ करना है। मेहनत तो आपने करनी है। जब बाबा जी आप कराओगे तभी होगा। नहीं, जो आप कराओगे तो आप क्या करेंगे? इंसान अपने हित के लिए भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? जी बाबा। जब आप सेवा पे जाते हैं या घर का काम काज है, आप ये कहते हैं कि मैं बिस्तर पे बैठा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो आप आके मेरे को नहला देंगे, आप चाहेंगे तो मेरे मुंह में रोटी डाल देंगे। हाँ बाबा जी कोशिश करवाना प्लीज़। बाबा जी दया मेरे हमेशा बनाए रखना। राधा सो। बाबा जी जिस व्यक्ति को नामदान मिल गया उसका जन्म और मृत्यु इसी जन्म में बंद हो जाएगा या अधिकतम कितना जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, और वो कम भजन सिमरन भी करता है लेकिन नहीं, जो भजन सिमरन करेगा वो करता है। नहीं बेटा, जो भजन सिमरन करेगा वो पाएगा। सिर्फ नामदान लेने से तो कुछ नहीं होगा। ये तो वैसी बात है कि भाई बच्चे को स्कूल में दाखला दिला दिया तो अपने आप फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखला दिला दें, मगर आगे जाके बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई के बगैर तो नहीं पास होगा। तो नामदान तो स्कूल में दाखला दिला दिया। अब अगर आगे जाके हमने भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करेंगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? बाबा जी जब मैं भजन सिमरन बैठता हूँ, घर में अकेला रहता हूँ, उस समय मुझे डर लगता है। अधिक समय तक बैठा नहीं पाता। नहीं बेटा, ये सिर्फ मन के बहकावे हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं होता। क्या हो जाएगा? ये तो मालिक से रिश्ता जोड़ रहे हैं, मालिक की याद में बैठे हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। जब सब लोग रहते हैं घर में तब नहीं लगता है, अकेला रहता हूँ तब लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ मन डरावे देता है आपको और कुछ नहीं।
बाबा जी सबकी गलतियाँ माफ़ करना, दया रखना, रक्षा करना। सबकी गलतियाँ माफ़ कर दी तो आप तो फिर दूसरी करनी शुरू कर देंगे। ऐसे आसानी से अगर कोई गलती माफ़ कर देगा तो दुनिया नहीं सीखेगी बेटा। सो ये बेटा कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि ये तो हर एक को हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो सोच विचार के कदम उठाएं आप। सब दया रखना, सब रक्षा करना। बाबा जी जब कोई हमको बुरा भला बोलता है, जब कोई गलती भी नहीं होती हमारी, तो उसको जवाब देना सही है या गलत? नहीं बेटा, क्यों उसने अपनी ज़ुबान गंदी की, आप अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करते हैं? आप अगर चुप करके वहाँ से चले जाएंगे, उसकी जो खुशी है ना वो आपके रिएक्शन में है। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आपने तो उसकी खुशी ले ली। बाबा जी फिर सब बोलते हैं तो कुछ बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता। अरे क्या क्या बोलना है बेटा? उससे क्या तसल्ली मिल जाएगी? अगर किसी ने मेरे को गाल निकाली, मैं वापस उसको गाली दे दूं तो क्या मेरे को तसल्ली मिल गई? मैंने तो ज़ुबान अपनी गंदी कर ली, अपने ऊपर और कर्म उठा लिए बेटा। जी बाबा जी। और बाबा जी जैसे जिसको नामदान नहीं मिलता, जिसकी एज नहीं होती, उसको सिमरन बैठ के क्या करना चाहिए? नहीं, चुपचाप बैठ के ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करें। चुपचाप बैठते तो ध्यान यहाँ वहाँ जाता है दुनियावी बातों में। नहीं बेटा, आदत की बात है, आदत डालेंगे टिकेगा। बाबा जी भिलवाड़ा ज़रूर आना। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਧੁਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਗਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 15-16 ਦਿਨ ਲਈ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹਲਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰੁਕ ਜਾ ਹਜੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਰ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बाबा जी भजन सिमरन की शक्ति देना बाबा जी। बाबा जी हम सेवा को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं? बेटा देखो, सेवा कोई बड़ी नहीं होती, सेवा कोई छोटी नहीं होती। नहीं, एक सेवा को अच्छे से, मैं वही उस पे आ रहा हूँ। जिस भावना के साथ आप सेवा करते हो वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी सेवा है। भावना सही रखो। हमने सेवा से कुछ लेना नहीं है, हमने इसके एवज़ में कोई शाबाशी नहीं मांगनी किसी से कि मेरे को थैंक यू करे या मेरा शुक्रिया अदा करे। हमने इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना। सेवा करनी है कि मैंने कुछ देना है, उस भावना से करोगे, अपने आप सारा कुछ अच्छा रहेगा। प्यार और निम्रता की गहराई को सेवा के दरमियान समझाइए। एक प्यार और निम्रता की गहराई को। नहीं बेटा, सेवा का मकसद ही ये है कि हम मन झुकना सीखे, मन में निम्रता आए। निम्रता आएगी तो ये प्यार का पात्र होगा बेटा। और विरह और तड़प अपने मुर्शिद के लिए भजन सिमरन में कैसे आ सकती है? ये वो मालिक की बख्शिश है। देखो, मन बहुत ताकतवर है। जब तक मन को किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, ये मन कुर्बानी नहीं देता बेटा। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि एक बेटे के लिए उसके माँ बाप ही सबसे पहले भगवान होते हैं, क्या ये सच है? एक बेटे के लिए उसके माँ बाप ही सबसे पहले गुरु और भगवान होते हैं? बेटा, मालिक के बाद तो माँ बाप ही है ना। हम कहते हैं मालिक को क्यों हम उसकी भक्ति करते हैं, क्योंकि मालिक ने सब कुछ दिया है और सृष्टि में माँ बाप ने सब कुछ दिया है। तो अगर हम माँ बाप से शुरू करेंगे, उस भावना को अपने अंदर जागृत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, प्यार करेंगे, तभी तो अंदर वो प्रेरणा मिलेगी कि मालिक की भक्ति करवाएं। बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि जब तक आपको नामदान नहीं मिलता है तो अपने माँ बाप को हमेशा, माँ बाप की सेवा करो, उनकी खुशी में ही आप हमेशा खुश रहते हो हमसे। बाबा जी, हम कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो कुदरत का कुछ ऐसा नियम होता है कि हम चाहकर के भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है उनके लिए करना, लेकिन हम मजबूर होते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं बेटा, देखो ऐसी बात है
एक जनरेशन गैप भी है। उनकी सोच जो उनका अनुभव है उसके ऊपर जुड़ी हुई है, आपकी सोच आपके अनुभव के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं लाजमी है कि उनकी थोड़ी सी सोच माँ बाप से अलग होगी, मगर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं जहाँ हम लड़ाई झगड़ा करें। तो कभी उनकी मान ली, कभी उनको अपनी तरफ मना लिया, थोड़ा सा प्रेम और प्यार की भावना से। बाबा जी जैसे अभी पापा हमेशा लोक सेवा में आते थे, अभी वो बीमार हो गए 4 साल से। हमेशा जब भी टाइम आता है तो मुझे कहते हैं, गले से लगा के खूब रोते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं नहीं जा पाता लेकिन तू जा, और बाबा जी से कहना कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस सेवा पे बुलाए। बेटा ये कर्मों का हिसाब किताब है, मालिक हमारी भावना देखता है, अगर सच्ची भावना है मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे बेटा। बाबा जी ऐसा लगता है कि एक बेटा होने के नाते हमें उनकी खुशी के लिए हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते कि हम उनको इस माहौल में वापस लेके आ सके, जल्दी से जल्दी सेवा पे जुड़ा सके। बेटा कई चीज़ें हमारे बस में हैं, कई चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। इंसान सारा कुछ नहीं कर सकता। अब मौसम है कि आप मौसम को बदल सकते हैं, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। अब सर्दी आई रोना शुरू कर दें तो मौसम तो नहीं बदलेगा ना आपके लिए, मगर आप अपना बचाव कर सकते हैं कि सर्दी है गर्म कपड़े डाल लें, गर्मी है पंखे के नीचे बैठ जाओ। तो वैसे ही बेटा सब दुनिया का दुख दर्द इंसान अपनी तरफ से नहीं ख़त्म कर सकता। तो हमने तो अपनी तरफ से अपने आप को बचाना है कि हम ना डोलें और हम दूसरों की मदद कर सकें, उनका सहारा बन सकें। बाबा जी हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक परमार्थ का, एक स्वार्थ का। परमार्थ के रास्ते पे भी चलने में हमारा ही स्वार्थ होता है। बेटा देखो ये जो मन है ना हर एक चीज़ को गिनती में लाता है। हम चाहे ना चाहें इसने गिनती करनी है। तो थोड़ा सा विचार करें कि जो चीज़ आएगी खुशी देती है, जाते वक्त हमें दुख देती है, तो उसको हासिल करने में क्या फ़ायदा हुआ। हमें तो उन चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए जो सदा साथ निभें और सिर्फ खुशी दें बेटा। अब देखो घर में बच्चे का जन्म हुआ, हम कितने खुश होते हैं, यारों दोस्तों को भी बुलाएंगे, हम मिठाई भी बांटेंगे। आगे जाके वो बच्चा बिगड़ गया या कहना ना माने या बीमार हो गया, वही दुख का कारण बन जाता है बेटा। तो थोड़ा सा एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बाबा जी कभी भी जैसे अभी बख्शिश नहीं हुई है नामदान की तो ध्यान पे बैठते हैं, जब भी ध्यान पे बैठते हैं तो कभी कभी तो आप दर्शन दे देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा जी आज दर्शन देने नहीं आए, शायद बिजी है। वो आंख में चोली तो खेलनी चाहिए ना थोड़ी सी। जो चीज़ आसानी से मिल जाएगी आप कहाँ उसकी कदर करोगे। तो इसलिए बाबे को भी थोड़ी सी आंख में चोली खेलनी पड़ती है। बाबा जी एक बार आपने क्वेश्चन आंसर में कहा था कि जहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वहाँ आप सत्संग जरूर फरमाते हैं। नहीं, किसी ने कहा होगा कि जी आप यहाँ आओ, और मैंने उसका उत्तर दिया होगा कि भाई यहाँ क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो पंजाब के हर एक गाँव में इतनी संगत होगी, तो फिर जो बाहर के सूबे हैं फिर वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। क्वालिटी होगी वहाँ कशिश होगी, अपने आप में चला आऊँगा। बाबा जी नामदान की बख्शिश करना और दया मेहरबानी बना के। बाबा जी हमारी जो एज है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी पॉजिटिव लाइफ को पॉजिटिव वे में और स्पिरिचुअल वे में ले जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बेटा ज़िंदगी में जो भी कदम उठाते हैं सही भी उठा सकते हैं, गलत भी उठा सकते हैं, दोनों ही आसान है। ये तो आपके ऊपर चुनने में पड़ा है ना कि कौन सा कदम उठाएंगे। तो ज़िंदगी में सही कदम उठाएंगे बोझ हल्का होता जाएगा, गलत उठाएंगे बोझ बढ़ता जाएगा बेटा। तो मकसद तो यही है कि हम अपने अंदर वो जागरूकता पैदा करें, क्योंकि इस वक्त हम तो माया के अंधेरे में फंस गए आकर, और उस माया के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता तो इसलिए भटक रहे हैं। अगर अंदर से प्रकाश का सहारा मिल गया, देखने की ताकत आ गई, जागरूकता आ गई, तो सही चॉइस बनाना उतना आसान हो जाएगा ना। बाबा जी अपने कोई जीव है, कोई इंसान है, अगर धरती पे आया है और उसने पूरी लाइफ अपने कर्म भोगे हैं, उसने कुछ नहीं किया और
मतलब उसने बहुत ज़्यादा भुगता है और वो ऐसे ही चला गया, तो उसमें उसके कर्म इतने बड़े होते कि है ना वो असली मालिक को प्राप्त ही नहीं कर पाया और ऐसे ही चला गया। बेटा जो भी होता है कर्मों के हिसाब से होता है, कर्मों आपो अपनी, ठीक है ना। सो इसलिए हम इन चीज़ों की गिनती में मत पड़ें और ना ही हमारे में हिम्मत है कि हम इनको पूरा कर सकते हैं। अगर उसकी रज़ा में रहेंगे वो जिम्मेवारी उठाएगा, अपने आप पूरे करवाएगा। बेटा हम क्यों परख में पड़ते हैं। और बाबा जी उस मालिक की मौज में रहने के लिए और इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? भजन सिमरन। अभी नामदान नहीं, तो आप अच्छा इंसान तो बन ही सकते हैं। ठीक बाबा। राधा स्वामी बाबा जी, सबसे पहले तो मैं ये मांगती हूँ कि यहाँ पर खड़े रहने की हिम्मत बख्शो और बात करने की। मेरे सूरत काबू ही नहीं आती है। बोलूं? बोले। बाबा जी मेरा ये सवाल है। बहनों को कोई बोलने से मना कर सकता है? पर बाबा जी जो होता है अंदर वो तो बोलना पड़ेगा ना। हमें ज़रूर बोले। नहीं मैं तो ये तो देखो, हर एक आदमी अपना हक लेके आया है, बहनें अपना हक लेके आई हैं। हाँ आप सुनोगे? हाँ मेरा ये सवाल है कि आप सबको कहते हो भजन सिमरन करो और आपकी संगत कहती है कम भजन सिमरन करो। आप कहते, हाँ बताती हूँ फिर बोलते हैं कि आप बोलते हो तीसरे तिल पे आओ और ये सब कहते हैं नीचे आओ। फिर मैं क्या करूँ? मेरा तो बहुत अच्छा चलता है भजन सिमरन, सब मजा आता है मुझे। नहीं आपने इनकी सुननी है मेरी सुननी है? आपकी सुननी है। पर तो फिर क्यों इनकी बातें मानते हैं? ये सब बोलते हैं मुझे कि ध्यान मत लगाओ, ध्यान मेरे बस में है ही नहीं, सब आप ही करते हो। बताओ फिर सबको। अरे आप क्यों इनकी सुनती हैं? तो बेटा ध्यान किसी के भी बस में तो नहीं फिर है। आप सबको कहो कि मुझे ऐसे नहीं बोले। नहीं वो देखो बेटा हर एक अपनी सोच से चलेगा। हाँ। आपने देखना है कि आपके लिए क्या सही है। तो फिर मैं अपनी मर्जी चलाऊं? हैं? नहीं आप अपनी मर्जी चलाएं, अगर वो मर्जी मेरी सोच से मिलती है। वो तो मिलती है ना। वो सदा नहीं मिलती। अच्छा। अरे ऐसे मेरे को मत बताएं आप। अच्छा तो मेरे पास तो कोई सवाल भी नहीं था वैसे तो, मुझे तो मौका चाहिए था आपसे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपकी सोच और मेरी सोच एक है? आप भजन सिमरन करेंगी, सूरत को चढ़ाएंगी, तब पता चल जाएगा। अच्छा बाबा जी। और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या था, हाँ ये कि आप तो कहती थी मेरे पास सवाल है ही नहीं। नहीं तो आपसे तो मैंने दूसरा कहाँ से आ गया? नहीं आपसे मैंने प्रार्थना की थी कि बाबा जी मेरे पास सवाल भी नहीं है, जवाब भी आप हो, सवाल भी आप हो, तो आप अपने आप ही बोलते जाना मेरे अंदर से। अच्छा तो आप बोल रहे हो? अच्छा आप बोलूं? आप हटेंगी तो नहीं? हाँ बाबा जी ये मौका रोज थोड़ी मिलता है। हाँ अब आप बताओ। अच्छा हाँ प्रेम बड़ा होता है या भजन सिमरन बड़ा होता है? बेटा दोनों। प्रेम होगा तो भजन सिमरन करेंगी और भजन सिमरन करेंगी तो प्रेम बढ़ेगा। अच्छा जाऊं? नहीं और थोड़ा सा और बात कर लो ना। हैं? थोड़ी सी और बात कर लो। तो वो भाई साहब बेचारे थक जाएंगे खड़े होते। नहीं थकते, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके दर्शन करना।